भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के IETE हेडक्वार्टर में। आज यहां पर हम 56th वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका जो थीम है वो बहुत ही प्यारा रखा गया है। आज का थीम आप देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हमारी सरकार ने हमको दे ही दिए थे, लेकिन आज उसी पर तर्ज ये थीम रखा गया है। डिजिटल इनोवेशन की यहाँ बात की जाएगी और उन तमाम इनोवेशंस को लेकर चर्चा की जाएगी। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड एजुकेटर्स, टीचर्स और तमाम लोग यहाँ पर होने वाले हैं। ये आपको ले चलते हैं सीधे इवेंट पे। Very warm welcome to one and all present here at the 56th World Telecommunication and Information Society Day celebration of IETE. I request the President IETE to accompany the dignitaries to the dais. Society is changing. We have been moving now towards a system which actually we call as a system which cannot be imagined without internet. And today, if you look at one of the challenges that 1 in every 3 people globally has no access. That basically is the data which talks about this. That is one of the challenges which actually is faced today. We have to bring in and bring that with the digital divide which actually exists. If you go back 20 years back, these things were being discussed only in academic circles, and people were not taking cognizance of whether the climate is changing or not. The sustainability related matters used to be discussed only in the academic forums. Now the times have changed, and these are now becoming discussion at the summit level meetings. So the summit level meeting goes without any discussion on climate change and sustainability related matters. And in fact, if we just simply take the simple data that we see the kind of jobs that are being generated, the top 4-5 jobs are in the area of artificial intelligence, machine learning, big data. But 6th and 7th in the number is sustainability related jobs. ESG these days is becoming a buzzword. And we have USG from Deloitte. A lot of ESG related, sustainability related jobs are being they are looking for people who are experts in the area of sustainable development. So if we just simply, one of the most important roles of science and technology is to improve the quality of life of people. That is the fundamental, role that science and technology plays. If we talk of digital innovation, perhaps go back to the digital revolution somewhere in 1950s, I guess, when everything converted from mechanical analog electronics to digital electronics, saw the invent of computers, internet, and so on and so forth. It was perhaps 1st August 1991 when the whole world witnessed World Wide Web, which is internet. Internet, kind of a window from which you could attract and you could talk to the whole of the world. Internet, which diminished the geographical boundaries and the whole world emerged as a global village. The distances remain no longer a constraint. The data did not remain a constraint, and we are flooded with the data. So much of data so that penetration of data crossed all boundaries. There were no perception of boundaries, and the whole world is a small entity which emerged. So some of the digital technologies that are revolutionizing businesses, next slide please. These are artificial intelligence and machine learning. These are reshaping businesses by automating processes, analyzing data patterns, and enabling predictive insights. The blockchain technology has expanded its reach into supply chain management, finance, and healthcare, offering secure and transparent transaction solutions. Internet of Things connects devices to the internet, paving the way for smart homes, remote monitoring in healthcare, and optimized industrial processes. 5G, 6G technology promises unprecedented connectivity speeds, fueling developments in autonomous vehicles, augmented reality applications, and telemedicine. Augmented reality and virtual reality are transforming entertainment, education, and the digital space by giving an immersive experience to the users in digitally enhanced experience. Cloud computing continues to empower businesses with scalable access to computing resources, thus fostering innovation agility.
Cloud and cybersecurity is equally important technology with the advancements in encryption and threat detection. This is crucial to safeguard digital assets against evolving threats. And the latest is the quantum computing, which holds promise for solving complex problems exponentially faster, thus impacting fields like cryptography and drug discovery. What is happening from a government perspective, and I personally have a lot of regard for what's happening there. I give a little sense of what's happening in the corporate world, what's happening with the telecom industry, how are they really dealing with this topic, what is the support that they're getting from the government, and where are we heading over the next few years. So it's not that, the corporate world isn't aware of the fact that these are challenges around sustainability in the telecom world, they're doing a lot of stuff, but obviously there are certain limitations. In the corporate world, you obviously factor cost and profitability, etc. So I think there are some challenges, but I think we grappled with it. Over the next probably a few years, we probably kind of, I don't know these challenges, but I'm sure some of the new ones are going to emerge as we get along. If you can really move to the slides, right, you should really look at where the industry is today. The Prime Minister talks about a 5 trillion economy. We're sitting at as close to probably a 4 trillion economy today. UP wants to get into a $1 trillion economy, so hopefully, and they're really doing well to really achieve that piece. FDI this year, probably we had a little bit of a winter season this year from an FDI perspective, but I think it's looking really bright. The whole of the world is looking at a flat GDP and they're still growing at a 7.5%, probably 7%. So there's a significant amount of FDI coming into the marketplace. Across the technology world, across the telecom world, you see just so many startups really moving out. IPOs of all the tech companies are coming into this market, so really there is enough inflow of funds that's coming, which is a very, very positive sign for India. में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी हैं, आप वाइस चांसलर हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा IET को कि आज जो ये 56वां वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मना रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सोसाइटल रेलेवेंस का जो टॉपिक चूज़ किया, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा एक तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि इस थीम को उन्होंने चुना, और ऐसे जो फोरम है, स्पेशली जो ऐसे आज का दिन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सोसाइटी में जो डिजिटल इंटरवेंशन है टेक्नोलॉजी की इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी में अभी अवेयरनेस नहीं है। पहले तो सस्टेनेबिलिटी की बहुत कम अवेयरनेस है, और कैसे हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से सोसाइटी में हम इन डेवलपमेंट गोल्स को अटेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और स्पेशली इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ लाइक IETE, AM इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसको समाज में प्रचार करने के लिए। सर, अगर हम देखें तो ICT को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लगभग हर सेक्टर में हमें ICT देखने को मिलता है, फिर वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, एग्रीकल्चर हो या एजुकेशन हो, हर सेक्टर में। ऐसे में इन गोल्स को अचीव करना कितना इजी होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं इनके लिए, तो इनको कितना कितने ईज़िली हम इन्हें अचीव कर सकते हैं, या ये चैलेंजिंग होने वाला है हमारे लिए? नहीं, जिस प्रकार से ICT एज अ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका, और उसमें जो नॉलेज क्रिएट हो रही है, और उसको हम लिंक कर रहे हैं जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि बल्कि आसान होगा उनका, क्योंकि जो लिटरेचर है और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है स्पेशली कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ही एक बहुत सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी है जो इन गोल्स को अटेनमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जैसे आज मैंने एक बहुत छोटी सी आपको बात बोली कि जैसे सेंसर्स जो फॉसेट्स में लगाए जाते हैं, तो वो अगेन एक थोड़ा सा एक प्रयास ही है कि वाटर वेस्टेज को रोका जाए। तो इसी प्रकार से जो डिजिटल इंटरवेंशन है आपका टेक्नोलॉजी का
एजुकेशन में, जो कि एक अगेन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, तो उसमें आपको जो सोसाइटी का जो आखिरी व्यक्ति है, जो लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, जिसके पास वो सहूलियतें नहीं हैं जो कि एक महानगरों में बच्चों के पास रहती हैं, उनके पास इस टेक्नोलॉजी से हम बेस्ट टीचर्स का जो ज्ञान है हम प्रचार कर सकते हैं उसका। तो आने वाले समय में, और आप कृषि में देखिए, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, वहाँ पे ड्रोन्स एप्लीकेशन है जिसमें अगेन कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, हम स्मार्ट ग्रिड की बात करते हैं, और सब जगह इसका रोल है। और मैं समझता हूँ इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस टू अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें इंजीनियरिंग जो इंटरवेंशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिजिटल टेक्नोलॉजी की बताई गई है, और उन्होंने पूरा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से मैप किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ आगे ये तो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल नहीं बल्कि आसान ही रहेगा। तो इट विल बी एन इनेबलर इन अचीविंग द SDGs। सर क्योंकि थीम हमारा डिजिटल इनोवेशन है, और हम देखते हैं कि जो हम वर्ल्ड को अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो 3 तरीके से डिवाइड हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, और इनके बीच में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। जो भी इनोवेशंस होते थे वो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते थे, और फिर हम उनको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करते थे, उनसे लेते थे चीज़ें, तो हमारे पास चीज़ें काफ़ी देर से आती थी। वहीं ऐसे में अब इस तरीके के जो ये इनोवेटिव टास्क हमारी गवर्नमेंट ले रही है या हम सोसाइटी के लोग ले रहे हैं, एजुकेटर्स ले रहे हैं, तो क्या इससे इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनने में हेल्पफुल होगा? मैं समझता हूँ कि ना, बल्कि इंडिया ने ख़ासतौर पे डिजिटल टेक्नोलॉजी में लीड ली है। जो डेवलप्ड नेशंस भी नहीं कर पाए वो इंडिया ने ख़ासतौर पे, एग्जाम्पल इज़ UPI। एग्जाम्पल UPI का बहुत बड़ा उदाहरण है। UPI का बहुत बड़ा उदाहरण है जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और मान लीजिए जो ये किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में इस तरह से रिवोल्यूशनाइज नहीं हुआ है। और मतलब मैं तो, आप किसी सोसाइटी की जो किसी भी टेक्नोलॉजी की जो पहुंच है वो आप देखिए सोसाइटी की किस लेवल के व्यक्ति पे पहुंच रही है। यूजुअली जो टेक्नोलॉजी आती है उसमें सोसाइटी के जो अपर क्रस्ट है सबसे पहले यूज़र उसके वो होते हैं। आज आपको जो एक सब्ज़ी वाला है, एक जो जिसके पास एक अपनी पक्की दुकान भी नहीं है, वो भी आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता हुआ पाएगा। और इसी प्रकार से जो आधार का से लिंक जो चीज़ें हुई हैं, मैं नहीं समझता विश्व में जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इस लेवल की जो है डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम यूजिंग द टर्म डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं हुई होगी। क्योंकि जब भी, जैसे मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसका सबसे पहले यूज़र्स अपर स्ट्रेटा के लोग होते हैं। आप एक सबसे बड़ा इंडिकेटर उसका यूटिलाइजेशन का, आपका जो बहुत सोसाइटी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं, जब उसको वो यूज़ करने लग जाएं तो एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। वो एक उदाहरण ये है कि उसका टेक्नोलॉजी का सस्ता होना, तभी वो उसको अफोर्ड कर पा रहा है, और उसका उपयोग में लाना। तो वो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा भारत का। और ऐसी ही चीज़ें जो हो रही हैं, वो मेरे को बहुत पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि समय में, जो आने वाले समय में जो भारत विश्व में एक अच्छी ताकत निकल करके उभरेगा। हमारे साथ IETE प्रेसिडेंट प्रोफेसर AK सैनी सर हैं। सर, आज का जो थीम रखा गया डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छा थीम है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी, आज की डेट में अगर आप देखें ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड दो तीन चैलेंजेस हमारे पास है, जिसमें कि सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है। पहले हम लोग लोकली बात करते थे, बट हमने देखा है पिछले करीब 15-20 सालों से हमने बात की हम लोगों की कि हाउ डू वी लुक एट रिसोर्सेज जो हम जनरेट कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमारे को कल के बारे में सोचना है, तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट। तो इसके लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड इशू है। और साथ में ये भी है कि जब हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ रही हैं, जिससे कि ओवरऑल हमारी सभी मानवता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी का जो हमारी जो वर्ल्ड वाइड जो एक डिस्कशन हुआ था 17 SDGs बनाए 17 SDGs जो बनाए गए जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसमें से एक हमारा इंटरनेट के ऊपर भी फोकस है कि हाउ डू वी ब्रेक द डिजिटल डिवाइड, जिससे कि सभी पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, ग्लोबली बहुत बड़ा इशू है। और जहाँ तक डिजिटल इनोवेशन की बात है, आज की डेट में देखिए जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको हमें अचीव नहीं कर सकते अनलेस कि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। तो हमारे को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी सस्टेनेबिलिटी को भी अचीव करना है। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हमने देखा है कि हाउ डू वी से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, हर काम को करने में हमारे को कैसे सक्षमता हो, उसके लिए हमारे को डिजिटल बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा हमारे पैंडेमिक टाइम के अंदर हम लोग अब सब घरों में बंद हो गए थे, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो हमारे पास एक वही हमारे को रास्ता दिखा जिसके अंदर कि हम अपना खाना मंगाना हो तो हमसे मंगा सकते हैं, हमारे को पढ़ाई करनी हो हम कर सकते हैं। सारे एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे को डिजिटल का बहुत सपोर्ट रहा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा सुपर जो हमारी डिजिटल प्रोग्रेस थी वो 4-5 साल पहले हो गई है। आनी तो थी लेकिन को पहले आ गई है, पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा पहले हम एडवांस हो गए हैं। तो ये लगता है सभी के लिए, और ग्लोबली अगर आप देखें तो ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, और हम चाहते हैं दैट वी आर एक्चुअली ग्लोबल सुपर पावर वी शुड बिकम। अभी तक हम सर्विसेज में ज़्यादा थे, हम थोड़ा सा वी आर डाइवर्सिफाइंग टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो। लाइक UPI बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, वी आर द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 3rd लार्जेस्ट। सो वी आर ऑल्सो इनिशिएटेड सेमीकंडक्टर मिशन हमने स्टार्ट किया, AI मिशन किया। सो हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर अब इसी तरह से चलते हैं तो हमारे को विकसित भारत बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी सर, जब हम डिजिटल इनोवेशन की बात कर रहे हैं, आपने अभी ठीक बताया कि पेंडेमिक के टाइम पर क्या हुआ कि सारी चीज़ें, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ तो सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट होती गई, फिर वो खाना मंगाना हो, ग्रोसरी मंगानी हो या एजुकेशन हो। और सिर्फ यही नहीं, हम देखते हैं कि ICT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और वो हर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर में भी ICT हमें देखने को मिलता है, फाइनेंस में भी देखने को मिलता है। ऐसे में विद द हेल्प ऑफ ICT हम जो ये गोल अपने आप को दे रहे हैं, हम इसे कितनी जल्दी और कितने अच्छे से अचीव कर सकते हैं, या ये कितना चैलेंजिंग होगा हमारे लिए अचीव करना? देखिए, जहाँ तक गोल्स की बात है, ICT का इंटरवेंशन हर जगह पर है। आप कोई भी काम देखिए अपनी लाइफ के अंदर, आप ICT के बिना सोच ही नहीं सकते। और हमारे को इसमें इसलिए अच्छा प्रोग्रेस करना चाहिए बिकॉज हमारे पास जो मैन पावर है हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का वो हाईएस्ट है। हमारे पास करीब 70% पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, जो एक वर्ल्ड में किसी पावर के पास नहीं है। हमारा जो पॉपुलेशन इस टाइम वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमारे को इसका को यूज़ करके अपनी जो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड है, इंग्लिश स्पीकिंग है, तो हमारे को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसको यूज़ करके हमारे को अपने जितने भी हमारे गोल्स हैं, क्योंकि हमारा आज का कोई एरिया ऐसा नहीं जहाँ पर ICT का रोल ना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात आपने की, जैसे आप चाहे ई-कॉमर्स की बात की, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे कार्स की बात करें, एवरी एरिया वी फाइंड दैट डिजिटल इंटरवेंशन इज़ देयर। और इसको हमारे को अच्छी किसी काम को करने में जिस हमारे को ज़्यादा टाइम लगता था उसमें ऑलमोस्ट 20%, 30%, 40%, 60% तक हमारा गेन्स हो रहे हैं। तो जैसे चाहे वो IoT की बात हो, अब इंटरनेट सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हमारे को दे रहा है कि हम उसके थ्रू बहुत सारी सर्विसेज, जैसे आज की बात करें, चाहे आप जोमेटो की बात करें, चाहे आप आपका जो ओला उबर जो कैब्स का सिस्टम है, थिंक ऑफ एनीथिंग, हर जगह टेक्नोलॉजिकल के बेस पर बहुत सारे नए इंडस्ट्री सेक्टर भी आ गए हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसकी वजह से। ये सारे बहुत सारे गेंस हैं, और लगता है कि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छा स्थान बनाएंगे, और वी आर वेल नोन इन द एंटायर वर्ल्ड। सर, एक आखिरी चीज़ और जानना चाहूँगा, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि अब हम पीछे बात कर रहे थे एजुकेशन की, हमने एक बात की, तो यूट्यूब ने, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन से हमें यूट्यूब में बहुत हेल्प किया, तो हम पढ़ाई भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ यूथ हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है अभी वर्ल्ड पे, तो वो यूथ वहाँ पर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? क्या कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं? क्या वो तरीके हैं जिससे कुछ इनोवेटिव चीज़ें निकाल सकती हैं, लोग अपना टाइम वेस्ट ना करके उसे यूटिलाइज़ करें और कुछ अच्छा कर सकें? देखिए, ICT आपको इस तरह से तैयार करता है कि आपको जो लगता है कि आपकी कुछ ज़रूरत है उसको आप ऐप की फॉर्म में बनाइए, उस ऐप के थ्रू आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसा कहना कि सिर्फ ICT के थ्रू हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ ओपनिंग अ मेनी न्यू एरियाज़ जहाँ पर कि बच्चे अपने टैलेंट को, अपने पैशन को चैनलाइज कर सकते हैं। अब आप देखें, हमारे जितनी ऐप्स है वो स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, ऐप बना दिया आपने, आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, ट्रैफिक के जैसे गूगल का है, आपने अपना एक ऐप बना दिया। लाइक दिस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ ऐप्स। आप देखेंगे अगर गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आपको इतनी सारी ऐप मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब फॉर एवरीथिंग इज एन ऐप। तो दिस इज अगेन ए न्यू एरिया
think of robotics, another area, IoT, another area. So we have plenty of opportunities जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. लोग जो सीख रहे हैं उसी ICT टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिप्लॉय कर रहे हैं. और सबका पर्पस क्या है? कम्युनिटी को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना. हम सबकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को कैसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, उस सब के थ्रू हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हो. सर, आप IET के प्रेसिडेंट हैं, तो मेरा एक सवाल और लाजमी बन जाता है यहाँ पे. IETE क्या नए इनिशिएटिव्स लेके आएगा जिससे जो हम डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उन्हें अचीव कर सकें? जी देखिए, IET एक अपने आप में करीब 70 साल हमारे पूरे हो गए हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग प्लैटिनम जुबली ईयर दिस ईयर. और हमारा शुरू से जो मोटो रहा है, ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, वो ये रहा है कि हमें एक तो हमारे को अपना मैन पावर तैयार करनी जो कि इन टेक्नोलॉजी में काम कर सकें. तो हम लोग अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स रन करते रहे हैं. अभी हमने ऑफ लेट हमने अपना वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी मोड़ दिया है, जिसके अंदर ये बच्चों को ट्रेनिंग देना, जिसमें जैसे ड्रोन मेंटेनेंस है. से आप देखिए कि EV व्हीकल्स के लिए हमारे सोलर एनर्जी की बात हो रही है. अगर आप देखिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में चैलेंजेस हैं, तो हम इसमें मैन पावर भी डेवलप कर रहे हैं और साथ में हम कोर्सेज भी करते हैं, सो दैट देयर इज अवेयरनेस. इसके अलावा हम लोग उस जो नॉलेज हमने जनरेट किया उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो हमारे पास पब्लिकेशन भी हमारी आए जो कि जर्नल्स के थ्रू होता है. रिसर्च क्या हो रही है, कैसे हम रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं. ये सारे चैनल के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सोसाइटी की जो नीड्स हैं, कम्युनिटी नीड्स हैं, जो रिसर्च नीड्स हैं और जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सबको हम पूरा कर सकें. इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, आई थिंक बिल्कुल साफ है कि वाइल जितनी ग्रोथ हो रही है इस कंट्री में टेलीकॉम को लेके, और उसके साथ सस्टेनेबिलिटी इज़ अ की टॉपिक, एंड सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड जितनी भी इंडस्ट्री है, ऑपरेटर्स हैं, सरकार है, आई थिंक सब कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कार्बन एमिशंस को कम किया जाए. नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस किया जा रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट साफ़ रहे. सोलर पैनल्स की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स की बात हो रही है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आई थिंक द ओनली चैलेंजेस ही किस तरह से हम इनकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके एंड ओवरऑल कमर्शियल मॉडल में बिठा सके. आई थिंक वो एक क्रिटिकल चीज़ है, बट आई थिंक मुझे लग रहा है काफ़ी उस पर तरक्की हुई है और आगे आई थिंक 3-4 साल में वी शुड बी एबल टू अचीव जो हम करना चाहते हैं. जी सर, आज का जो थीम रखा गया है आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, वो रखा गया है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस थीम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक आप कहना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल इनोवेशन इज ऑब्वियसली रैम्पेंट स्प्रेड अक्रॉस. आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हो रहा है तो उसमें डिजिटल, जितना भी डिजिटल इनोवेशन हमारे यहाँ हो रहा है, अगर आप देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर है, कहाँ मैकेनिकल से लेके आज हम EV व्हीकल्स पे आ गए हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे ऑब्वियसली इनोवेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल पेज. एंड आई थिंक अब एक इस कंट्री में एक जहन आ गया कि हाँ, हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में जीना है. आज की जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा एक तरह से प्रोत्साहित हो चुकी है कि हमको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, हर चीज़ का जो भी वो कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए कर रहे हैं. एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने भी जितनी एलोकेशंस करती जा रही है, गवर्नमेंट $3-4 बिलियन एलोकेट कर रही है, तो मेरे ख्याल से वो एकदम हम लोग बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं. एंड द फैक्ट कि बिकॉज यू लर्नड from some of the predecessors like China etc. जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है. So I think we are moving in the right track. थीम क्योंकि डिजिटल इनोवेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है उसकी शुरुआत कर रखी है. ऐसे में जो आज की थीम है इसको अचीव करना कितना पॉसिबल है, कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, चैलेंजिंग तो है ऑब्वियसली. जिस तरह से एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं और जिस तरह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री 4.0 जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इस कंट्री में, ये कहना कि आसान है वो तो नहीं है. बट आई थिंक कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक शुरुआत हो चुकी है. एंड whether it is the corporate world, whether it is the academic industry, सरकार, स्टूडेंट्स, यंगर पॉपुलेशन, आई थिंक आज की डेट में सब उस पर फोकस कर रहे हैं. तो आई थिंक डेफिनेटली असर तो पड़ेगा. जी. तो ये वो तमाम लोग थे जो इस सोसाइटी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हैं, फिर वो चाहे DTU के वाइस चांसलर हों या फिर IET के प्रेसिडेंट. सभी लोगों का लगभग यही कहना था कि जो डिजिटल इनोवेशन है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है. और जो ये थीम रखा गया है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इंडिया है वो अब ग्रोइंग स्टेज पे है, वर्ल्ड लीडर बनने वाला है. और जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सभी डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट कर रही हैं. आप लेटेस्ट
उदाहरण की बात हम पहले कर ही चुके हैं। यूपीआई एक ऐसा उदाहरण निकल के आया जिसे दुनिया की तमाम जो अन्य देश हैं वो भी उसे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम जो डिजिटल इनोवेशंस हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेंगे। आपको ये तमाम जो डिस्कशंस हैं, वार्ताएं थी, कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहे भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।